Now, in this case, I am going to discuss about the data handling. It is very important in higher classes. It becomes the subject of statistics. And the first, what is the meaning of data handling? So, first you understand what is the data. Data is a collection of information for different objects or items. It can be in the tabular form. अब देखिए, now then unless you do not understand what is the objects and the items, then it's very difficult. It is broadly classified in the two way. First is the living organisms, things जिसको हम कह सकते हैं, and non-living organism ये भी things है जो है. I think living means which can grow, which is the living, which doesn't grow, it is non-living. In a living organisms, population of the human being comes into picture, population of animal comes into the picture, population of birds comes into the picture. And there are so many things which will come in the living organism. I am not mentioning because it is for class 5 for students. And non-living means I have only mentioned those things which were known to a student. Number of the students, number of buildings, numbers of sports, number of books, copies, etc. It is a number only. They may be living organisms. Number of the school is not a living organism. Number of buildings is not a living organism. So why I mention all these things? Suppose someone says that, what is the total number of the school in a different district of Uttar Pradesh? So you have to write the name of 74, you can say, district, and each district will have a number of schools. How you can represent this data in a bar graph and telemars, that's important. But make sure that the telemars is for small data, but bar graph may be for higher data. I will show you how. अब जस्ट देखिए, एग्जाम्पल हमने दिया है, नंबर ऑफ क्लासेस क्लास 1 से क्लास 5 तक है, ये आप ऑब्जेक्ट्स आइटम कह सकते हैं, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट 15, 10 ये दिया हुआ है. सपोज आप इसको टेली में यूज करना चाहते हैं, तो हाउ विल डू इट? डेटा हैंडलिंग. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा फॉर ए गिवन ऑब्जेक्ट कैन डन इन द फॉलोइंग फॉर्म. फर्स्ट, पिक्चोरियल फॉर्म. पिक्चर फॉर्म, आप क्लास 1 में 15 लड़कों का फिगर दे दीजिए, फोटो दे दीजिए, और 1 फोटो दीजिए. यू कैन से दैट 1 फोटो इज 5 स्टूडेंट्स. दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. Large way, it has been taught in the nursery, class 1, class 2, class 3 student. Telemars. Of telemars, how telemars? Telemars is very simple. One is represented by 1 line, 2 line, 3 line, 4 line. But you go 5 line, so 4 line is cut either this way or that way. 1, this gives a number of 5. This gives a number of 5. But when you go 6, similarly 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4. But when you go for 10, then you have to do like this. That is how called the telemars. But it is used for the small data like this. अब देखिए, bar graph. I hope the shape of rectangle has already been taught to every student. Rectangle means length and breadth. Opposite sides are equal. So this is a vertical length. Vertical, you can say rectangle. This is a horizontal rectangle. But in a bar graph, the width of the rectangle should be very, very small. It is up to the students. Maybe 1 centimeter, maybe 0.5 centimeter, maybe 2 centimeter. It depends upon what is the length of graph on the x-axis. अब देखिए यहाँ पर ये आपको ये दिया गया बहुत आप एक पाई चार्ट मेथड होता है जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, सर्किल फॉर्म में होता है, पर यहाँ पर हमने दे दिया है हायर क्लासेस में. अब ग्राफ पेपर क्या होता है? ग्राफ पेपर देखिए, एवरीबॉडी नोज द ग्राफ पेपर का लेंथ अलग होता है, ब्रेड्थ अलग होता है. लेंथ इज ऑलवेज रिफर्ड एज एक्स एक्सिस और दिस इज को वाई एक्सिस, ये हम लिखते हैं. सपोज कर लीजिए यहाँ ये
number is not written in a graph paper. Only one mini centimeter, 1, 2, 3, 4, 10 centimeter, that is 12 centimeter. I have written 10 centimeter, but it is not written on the graph paper, frankly. And one is a square of this way. That means from here to here 1 centimeter or 1 centimeter. And this is again divided into 10 parts on this side, 10 parts on this side. So it makes 100 equal size. और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. तो ये समझे कि इसकी होल एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये ध्यान रख लीजिएगा. बट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 mm इंटू 1 mm इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. ये ध्यान रखिएगा. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. तो आप बता सकते हैं वेरी इजीली कैन कैलकुलेट दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm into 10 mm is equal to 10 10 100 mm square. क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है. ये स्टूडेंट्स क्लास 5 पे नहीं समझेंगे, लेकिन उनको ये बता दीजिएगा कि 10 into 10 100 होता है और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए mm स्क्वायर होता है. नोट, ऑब्जेक्ट आइटम जनरली शोन ऑन ए हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जनरली, but you can show on the vertical line as well. अब देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है बार ग्राफ का जो है. मैं मान लिया कि ये आपका एक्सिस यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जो है यहाँ पर 2, 4, 6, ये मैं इसलिए दिया हूँ क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2. यहाँ पर देखिएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट, ये मेंशन है. तो इसलिए हमने 2 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट, 8 ऐसे 28 स्टूडेंट लिया है जो है. और एक्स एक्सिस पर जो है 1 सेंटीमीटर के बीच में हमने क्लास 1 कर दिया है. एक छोड़ करके क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5. Said that the bar graph, the x-axis is always object. Here number classes are object. तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5. अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारा मैक्सिमम 25 है. सेफर साइड के लिए हम 28 तक लिए हैं, सेफर साइड के लिए, क्योंकि देर इज नो ग्राफ विच हैव 25 सेंटीमीटर. तो इसलिए हमने जो है 2 करके 28 लिया है. अब देखिए क्लास 1 में 15 स्टूडेंट हैं, तो सिंपली क्या है कि 14 और 16 के बीच में 15 पड़ेगा. इसको रेक्टेंगल हमने बना दिया. ब्रीथ हो गया हमारा क्लास, और ये हमारा, इसी को बार ग्राफ कहते हैं. और आई विल suggest the student to draw the other class, just like class 2 10 students, very clear. class 2 ले जाइए, 10 को यहाँ पॉइंट बनाइए, 10 को यहाँ पॉइंट बनाइए और इसको ड्रा कर दीजिए. और ड्रा करके आप ऐसे कर दीजिए. अब दूसरा एग्जाम्पल है क्लास 3 20 स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर थोड़ा मैं कलर कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ. अब देखिए क्लास 3 में 20 है, तो 20 यहाँ पर क्लास 3 के देखिए 20 आपका यहाँ पर है, ये 20 यहाँ पर है, और इसको इसी से रेक्टेंगल कर दीजिए. अब इसको आपको क्रॉस करने जाने लेकिन कर सकते हैं. दो जो आर इंटरेस्टेड दे कैन डू लाइक दिस. अब जैसे क्लास 3 हो गया. क्लास 4 में कितना है? 25 स्टूडेंट है. तो क्लास 4 में देखिए यहाँ पर 25 कहाँ आएगा? यहाँ पर आ जाएगा. और फिर इसको खींच दीजिए. और इसको बार क्यों कहा जाता है? स्टिक होता है, सर्कुलर स्टिक भी हो सकता है, आपका क्रॉस सेक्शन है या स्क्वायर है वो भी स्टिक हो सकता है, जस्ट लाइक ए पाइप. So because of that it's called bar graph. चूंकि ग्राफ पर बार प्लॉट किया जाता है इसलिए इसको बार ग्राफ कहा जाता है. अब ये स्टेप यहाँ पर दिया हुआ है और इसको आप जो है नाम भी दे सकते हैं. जैसे ABCD दिए हैं तो यहाँ पर EFGH कर दीजिए, नाम दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं जो. सो यू कैन अगेन रिपीट फॉर द क्लास 5 10. यहाँ देखिए बहुत सिंपल है.
लड़कों को सिंपल में बताइए, दे विल अंडरस्टैंड। टेबल उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये चीज उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो टेबल में आपको यू हैव टू रिमेंबर सीरियसली। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे क्वेश्चन क्या है कि इसको एक्टिविटीज ऑफ ए क्लास 3 स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट होते, किसी को म्यूजिक अच्छा है, किसी को पेंटिंग अच्छा है, किसी को ड्रामा अच्छा है, किसी को गेम्स अच्छा है। नंबर यहाँ दिया हुआ है। टेलीग्राफ कैसे करेंगे, टेबल बना लीजिए, 1 2 3 4 एक्टिविटीज हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। और टेलीमार्क क्या लिखे, दिस इज 5 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 या 25। और अगर आपका 20 का करना है तो कैसे करेंगे, पहले मैं 20 कैसे करेंगे, अब देखिए 20 में 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 10 हो गया, 1 2 3 4 5 15 हो गया, 1 2 3 4 5 20 हो गया। 5 एक बार कर दीजिए, 1 2 3 4 5। 10 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इट इज वेरी सिंपल। अब फायदे क्या है देखेगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हिच एक्टिविटी इज मोर प्रिफरेबल, तो क्वेश्चन है म्यूजिक, जस्ट देख करके ही बता सकते हैं। और नंबर पूछा जाएगा देन यू कैन से 25। अगर ये नहीं रहे तो यहाँ काउंट कर लीजिए। व्हिच म्यूजिक इज लिस्ट, ड्रामा, सिंपल है। अब देखिए, अब ये भी ध्यान रख लीजिएगा जरा जो है, फॉलोइंग बायोग्राफ शोज द रेनफॉल सेंटीमीटर प्लेस। अब ग्राफ इसमें दे दिया गया है, अब आपको क्वेश्चन बताना है क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब लगा राइट द मंथ ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफॉल। अब ये देखते ही बता सकते हो 10 सेंटीमीटर जुलाई में सबसे ज्यादा रेनफॉल हुआ है, मिनिमम कहाँ हुआ, 2 सेंटीमीटर अक्टूबर में हुआ है। राइट द रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड अक्टूबर। अगस्त में देखिए 6 सेंटीमीटर हुआ है और अक्टूबर में 2 सेंटीमीटर हुआ। सिंपली यू कैन आंसर बाय दिस वे। अब यहाँ पर टेली चार्ट दिया हुआ है, लिखा है 20 स्टूडेंट्स वी आर आस्क्ड टू गिव देयर फेवरेबल आइसक्रीम, यहाँ दिया हुआ है। अब नंबर काउंट करना, देखिए 5 + 5 10 + 14, 5 + 2 7, 5 + 4 9। That is how the question will be asked for class 5 student. They should know the telemark, bar graph, that's enough. How data is collected, अगर पॉपुलेशन बताना होगा, यूपी का जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंट है, लॉक्स में है, तो वो टेलीमार्क में नहीं जाएगा, उसको आपको बार ग्राफ में ही बताना पड़ेगा। बिकॉज इन बार ग्राफ यू कैन जूम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख। If it is 1000, 1 centimeter, 1000. But in telemark, you cannot do. So, give the clear message. Telemark is always used for small data collection, or bar graph is always used for bigger data. Even you go for circle chart, again it is used for the large data. अब नाउ जस्ट सी, अब दूसरे तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको फिलअप करना है। द टेलीमार्क ऑफ डिफरेंट कॉइन्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द चार्ट। देखिए अब ये 50 पैसा का इतने दिया हुआ है, कितना हुआ, 5 5 10 + 4 24। 1 रुपीज का 5 5 10 15 17, 5 4 जा 20 और 3 23, 5 3 15 4 19, 10 13. What I'm trying to tell you, the students preferably, unless my observation when I'm teaching to the primary section, unless you are not becoming a master of addition, subtraction, very, very important.
multiplication, division, along with horizontal addition, vertical addition. Also, what is the meaning of ones, tens, hundred, thousands? Very difficult to comfort in a mathematics. Thank you very much.